Bismillahirrahmanirrahim. Hello, everyone, and welcome to the Take Two edition of Behind the Curtain, a web show not only dedicated to those who intend on being in front of the camera, but also the technical geniuses who construct the medium of entertainment in various ways. One of the essential and pivotal modes of communication is the beautiful medium of dance and choreography, a medium which I feel is somehow not given a lot of exposure within the Islamic Republic of Pakistan. Anyhow, today I have with me a creative genius who manages to go beyond the unthinkable and doesn't let any hitch or glitch come in between what he does. He believes in the sole medium of dance expression through choreography and hails through Australia's medium of education, not only in choreography, but also an actor, a director, a producer of an international caliber. Worked alongside of A.R. Rahman, Sonu Nigam, Balwinder Safri, Usha Uthup, has conducted international tours all over the world. You name it. I mean, US, UK, Europe, India, everywhere, with more than 22 musicals to his credit that include the likes of Phantom of the Opera, if I have to mention one, to covering all aspects of choreography, whether commercials, music videos, films, events. I mean, I'm losing count here, but my guest has, I think, achieved more than I can say, and also award shows, fashion shows, everything. Lux awards, Hum awards. He's seen it all. There's also Bombay Dreams. I was reading up on it as well, and tribute to Fairs, Sufi Salam Festival. Pretty much every single film to come out of Pakistani cinema, if I'm not wrong, has my guest's name on it. He's also, has working on different genres of dance, which include Kathak, which include salsa, hip hop, Bollywood, and above all, the thing I admire about him the most is that he gives respect to his seniors, that he gives respect to the medium of choreography. And I mean, if you don't give respect to the people who somehow build on it, then I guess the industry is not going to flourish and move on. ऐसी तरबियत जो शायद बहुत में नहीं पाई जाती है, वो जो आज मेरे गेस्ट के अंदर है. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आई हैव विद मी द ब्रिलियंट वहाब शाह. वहाब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक? Walaikum assalam. What a dhasu intro. Thank you. Yeah, I mean, the thing is that obviously, when I was researching on you, there's plenty. I think which I couldn't construct, but otherwise, फिर मैं अगर मैं बातें करता रहता तो शायद फिर आपको मौका नहीं मिलता. But your genius and your work is there, and I don't think there are people who don't know of you. So all credit to you, and you have worked very hard to deserve where you are. And I hope you get more accomplishment and accolades your way. Thank you. Thank you. Thank you. Much अच्छा, appreciated. आई वांट टू मेंशन वन लिटिल थिंग. जब मैंने ये कोशिश शुरू की थी तो मुझे लगता है कि हमारे टेक्निकल लोग जो होते हैं उनको वो मीडियम नहीं मिलता है, या शायद वो मोड नहीं मिलता है जहाँ पे हम बैठ के डिस्कस करें. एंड आई हैड अ सेशन विद नाहिद सिद्दीकी जी in the first round, जी बिल्कुल and बिल्कुल. Wahab thought it was essential that I should get the idea of choreographers and dancers on board. So massive respect for that, and I think it was a wonderful session. I have to head disclose this. And मैं उसको कहा था कि Wahab, the next time I will have to speak to you because you have to speak about what goes on. So now I'll start. Sorry, मैंने बहुत बातें कर ली. कैसे हैं आप Wahab? ठीक ठाक हो? I am good. I'm first class. Thank you. बस कैसा चल रहा है कोविड के जमाने में एक ऐसी फील्ड के अंदर जहाँ पे हम मिलजुल नहीं सकते, करीब नहीं खड़े हो सकते? हाउ आर यू मैनेजिंग थिंग्स? I think I've managed quite well. I've managed to grow a beard. I've managed to grow my hair. I've managed to what you call it, self manifest, or कुछ realizations हुई हैं अपनी जिंदगी के बारे में. मजा आया है. मजा आया है. As in, मजा in the sense कि एक तो मजा हम कहते हैं ना कि यार वो बड़ा मजा आया. एक वो वाला मजा आया कि अपने आप से मिलके मजा आया थोड़ा सा. वेरी गुड, वेरी गुड. That was quite nice. Yeah. बेहतरीन. अच्छा, तो अब ये बताएं कि ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे ऐसी फील्ड को वेरी ब्लंटली मेरे ख्याल से इतनी इज्जत नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए, which is dance and choreography. What made you come into this and why? I think मैंने चूज नहीं किया इसको, इसने मुझे चूज किया. What happens, I think everybody who's associated to the creative fields में होता है कि you're born an artist, right? Or as RuPaul famously says, you're born naked and the rest is drag. So Absolutely. It's the same with
it's the same with arts. Okay, you're born artist, and the rest is all, whatever you do with it. So I guess I from an early age, when I was a बच्चा, तो तब तो मुझे इतना ज़्यादा inclination नहीं थी, because I was born in DI Khan. I grew up in a very conservative society, as Pakistan is generally a very conservative society. My father was a singer, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे. 2 साल पहले उनका इंतकाल हुआ. तो अब्बू की सिंगिंग की वजह से हमें, जब हम ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुए, माइग्रेट किए मिड 90s में, तो तब उनको देख देख के ज़रा एक फीलिंग आना शुरू हुई कि ये परफॉर्मिंग आर्ट्स का क्या एक ऐसा नॉन टेंजिबल सी चीज है कि जो लोगों को आप तक वो करती है, अट्रैक्ट करती है आपको. सो एक क्वेश्चन होता था अपने साथ, या उस एसोसिएशन के साथ जो अब्बू की थी ऑडियंस के साथ, और वी यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द ऑडियंस. तो अब्बू was responsible for the first radio station that represented Pakistan in Australia, the first newspaper that represented Pakistan in Australia, the first television station that represented Pakistan in Australia. He organized Muhammad Rafi nights. He was a singer. अभी भी जितने भी लोग ऑस्ट्रेलिया में अगर देख रहे होंगे तो उनको पता होगा, रियाज शाह is a big name. तो उनको देख देख के, उनके साथ रह के, एक वो इंट्रीग शुरू हुई to the arts. Although he was a cab driver, when he left Pakistan, तो he worked really really hard to raise us. और उन्होंने हमें उन्होंने कहा कि मेरा काम ये था कि तुम लोगों को इस मुल्क में लाके वो फैसिलिटी और वो एजुकेशन दूं, जो कि मेरा फर्ज है एज बाप. और मेरा ये फर्ज है कि मैं तुम लोगों को बताऊं कि अच्छा क्या है, गलत क्या है. बाकी you make your own choices, but get a degree under your belt, get a good education. This is an opportunity that this land is providing you. So I think his upbringing for us all has been so amazing कि जितना मैं thanks अदा कर सकता हूँ, पता नहीं ये words बनते नहीं है कि नहीं उनके लिए, उतना कम है. क्योंकि बहुत कम पेरेंट्स होते हैं कि जो अपने बच्चों को फ्रीडम देते हैं और गाइड उस तरह से करते हैं, whatever they want to do, वो enhance करते हैं उस चीज को. And that's what my father did. So yeah, बाकी तो आपने मेरी ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा बहुत काफी ज्यादा बता ही दिया कि I trained from Sydney. I performed with A.R. Rahman, Sonu Nigam. I had my own dance company back in 2003, 2006. So yeah. So fair enough. I mean, it's been a wonderful journey, and I'm sure that the sacrifice that parents make for their children, वो देखते हैं कि भाई बच्चे जो आगे बढ़ के कुछ करें. So absolutely, massive respect for your father as well, and may God rest his soul. लेकिन मतलब कि अब आपको क्या लगता है कि I mean, working this hard, I mean, whatever the parents did, are you able to repay that towards your own country with whatever you're doing? Am I able to repay whatever is hard work? I think to an extent I have. The reason I say that is because मुझे अक्सर लोग यही पूछते हैं कि why did you leave Australia? तुमने ऑस्ट्रेलिया छोड़ के पाकिस्तान क्यों आ गए? Majority लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं वो ये कहते हैं, और मेरा हमेशा से जवाब ये रहा है कि why not? I think this is a land of opportunities. It's got so much potential. It's still a virgin land in terms of especially in dance. तो बहुत ही वर्जन है, स्पेशली इन मॉडर्न डांस में. बहुत कम चीजें हैं यहाँ पर जो हो रही हैं. तो मैं जब पाकिस्तान आया एक स्टडी करके, तो हर जो लिनियर सोच है हर किसी की पूरी दुनिया में, वो ये है कि अपनी जात के लिए सोचना, अपने इमीडिएट फैमिली के लिए सोचना, उनकी सिक्योरिटी देखना, पैसा देखना, घर बनेगा, थोड़ी सिक्योरिटी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, which is a good approach in general in life. But I think मैं शायद थोड़ा अजीब था, तो मुझे alhamdulillah I've been blessed with everything, but money has never been my motivation. Fame hasn't been my main motivation behind it. It's always been the kind of dialogue जो मैं dialogue करना चाहता हूँ अपने काम के थ्रू, जो मैं बात करना चाहता हूँ अपने काम के थ्रू, वो communicate हो. और वो बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग की वजह से मुझे वो क्लैरिटी है बहुत ज़्यादा. मैं अपने काम में भी कोशिश करता हूँ, चाहे वो फिल्म का काम है, कमर्शियल काम है या आर्टिस्टिक काम है, मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि इस तरह का डायलॉग करूँ या इस तरह की चीज़ दिखाऊँ जो कि विच इज़ at least come from some inspiration that has come from an original
थॉट प्रोसेस से कोई चीज निकले मेरे. So, sorry, bringing it back to the topic. So Right. when I came back to Pakistan, I established my own dance company, which is Wahabsha Right. Dance Company, Right. and through it, I developed my own style, which was a collaboration of my contemporary training from Australia, Right. and I kind of was influenced and borrowed a lot from the Pakistani Sufi culture से मैंने बहुत कुछ उठाया. एंड उस सब को जब मैंने मर्ज किया तो इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी यूनिक शेप ऑफ यू नो व्हाट डांस इज फॉर मी, व्हाट इट डिड फॉर मी इन अदर Right. वर्ड्स. तो वो करते 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 वो ऐसा एक उसने शेप बनाई कि आई एंडेड अप परफॉर्मिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. आई एंडेड अप परफॉर्मिंग इन लाइक यू नेम इट लाइक ऑल द कॉर्पोरेट इवेंट्स एंड प्रेसिडेंसीज के अंदर और प्राइम मिनिस्टर्स के लिए. और वो जो एक सो कॉल्ड हमारा एक प्रेस्टिजियस हाई नोशन क्राउड है जो कि हम सब जानते हैं कि वो ऐसे लोग होते हैं snooty with you know with wine glasses and kind of not worrying. उन लोगों के लिए मैंने बहुत परफॉर्म किया. They appreciate art, you know. art तो हर कोई appreciate करता है लेकिन they pay you well as well. Right. नहीं good good no, fantastic fantastic. नहीं इज्जत और respect बिल्कुल जो है वो नजर आ रही है जितनी मेहनत की गई है. इंडस्ट्री क्या हमारे पास है कोरियोग्राफी और डांस की अवेलेबल है? हैव यू सीन इट? इज इट अलाइव? There is no such thing as an industry overall, especially entertainment. That's my belief at least. एब्सोल्युटली. Yeah, industry होती है जब एक industry जो है वो हर aspect से उसकी कोई hierarchies होती हैं. जो आपने शुरू में बात की एक respect की कि उस्तादों की रिस्पेक्ट करना, अपने पुराने लोगों को समझना, उनके कंट्रीब्यूशन को समझना. तो इंडस्ट्री तब होती है जब आप जानते हैं कि इंडस्ट्री में किसकी क्या हैसियत है, किसकी क्या हायरार्की है, किससे क्या मिलेगा, किसका क्या एक्सपीरियंस है, किसका क्या एक्सपोजर है. तो फॉर इंस्टेंस इसका मैं एग्जांपल एक ये दूंगा कि बारी स्टूडियो में आज भी अगर आप जाएं, शाहनूर या बारी या किसी भी स्टूडियो में, although it smells bad, it's all ruined down, it's crap in terms of you know उसकी जो एक environment है आपको वो नहीं आता. लेकिन जैसे आप उस गेट से अंदर एंटर करेंगे ना, तो अंदर एंटर करते यू एंटर इनटू अनदर वर्ल्ड. सामने आपके टेलर की शॉप्स हैं, साइड पे प्रोडक्शन वाले बैठे हुए हैं जिनके पास इक्विपमेंट है, कैमरा है, टेक्निक्स है, ये है. एक वहाँ पे प्रॉप वाले की दुकान है जो कि ये प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम्स बनाता है. वहाँ पे ऑफिसेज हैं एक्टर्स के, डायरेक्टर्स के, म्यूजिशियंस के. वहाँ पे रिहर्सल रूम्स हैं, वहाँ पे मिनी सिनेमाज हैं, वहाँ पे शूटिंग स्पेसेस हैं, वहाँ पे पीछे गांव बना हुआ है. तो दे गो इनटू अ स्पेस and उस स्पेस में everybody who's part of the industry is there. And also legend has it, I mean जो पुराने लोग हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज को कि पुराने टाइम में होता ये था कि एक कार्ड बनता था स्टूडियो के अंदर जाने के लिए, और अंदर जाके भी एक सर्टन हायरार्की थी ऑफ के टैलेंट प्रोवाइडर कौन है, डांसर कौन है, शिफ्ट के क्या टाइम है. एक शिफ्ट होती थी मॉर्निंग शिफ्ट, एक होती थी आफ्टरनून शिफ्ट, फिर दरमियान में होती थी टेडी शिफ्ट. इंडोर शूट क्या हो रहा है, आउटडोर क्या हो रहा है, ड्रेस डिजाइनर कौन है. ये सब बातें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, क्योंकि फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री एक वेल लुब्रिकेटेड, एक वेल जॉइंट इंडस्ट्री तभी बनती है जब सारे जो जुड़ते हैं आपस में. हमारे यहाँ ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी इंडिविजुअल्स हैं जो कि क्लेम करते हैं कि वो इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. इंडिविजुअल्स के कुछ अपने सेट रूल्स हैं, कुछ अपने सेट बनाए हुए प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो कि घरों में और उन जगह पे खुले हुए हैं, और वहीं पे प्लानिंग करके एक स्टूडियो या कोई स्पेस हायर करते हैं और उसके बाद फिर अपने उसमें ले जाके उसको एडिट करते हैं और उसको ग्लोरीफाई कर देते हैं. एंड देयर बैक्ड अप बाय चैनल्स. यू नो ईच चैनल हैज देयर ओन likable people, dislikable people, their own clan, their own film का म्यूजिक. ये मुझे समझ नहीं आती कि how come film became a चैनल का वो कब से हिस्सा बन गई. तो हम जब अवार्ड शोज करते हैं तो हमें बड़ा मसला होता है कि जी एक अगर कोई किसी चैनल पे अवार्ड शो चलना है तो दूसरे चैनल का गाना है, हम वो नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज वो उस चैनल का गाना है, इसलिए नहीं कि वो राइट्स नहीं है, बिकॉज उस चैनल का गाना है तो हम यूज नहीं कर सकते. तो ये इंडस्ट्री में ऐसी बातें नहीं होती. इंडस्ट्री में
टुगेदरनेस होती है। बातें आप जिसका भी इंटरव्यू करेंगे ना, सारे कहेंगे हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो सबके साथ काम करना चाहते हैं, करना कोई किसी के साथ नहीं चाहता। दे ऑल हेट ईच अदर। Wow, आई so डोंट नो, सॉरी, आई होप आई एम no, so very देखिए जी, काफी काफी तो बात मुझे भी पता है. I've kind of had a little bit of experience at that end, so I know where you're coming या from. But you know, as a young mind with so much energy, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार थोड़ी सी इस चीज को चेंज किया जाए, टू टॉक टू पीपल? क्या ये लोग सुनने के लिए तैयार भी नहीं कि चेंज हो सकता है? स्पेशली एज अ डांसर एंड कोरियोग्राफर, मसला ये रहा है कि हमारे यहाँ जितने भी कोरियोग्राफर्स गुजरे हैं, स्पेशली इन द ओल्ड इंडस्ट्री, बिकॉज कोरियोग्राफी मेजॉरिटी हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द फिल्म्स। राइट. कमर्शियल कोरियोग्राफी की बात कर रहा हूँ मैं, जो फिल्मों में रही है। तो कमर्शियल कोरियोग्राफी में यह था कि जितने भी लोग काम कर रहे थे ना, वो अगर इसको बहुत थोड़ा पीछे ले जाया जाए, लाइक लेट्स से 60s 70s में ले जाया, तो 60s 70s में जो लिटरेचर से रिलेटेड लोग थे ना, और जो एक ऐसे ऐसे लोग थे जो पढ़ा लिखा क्राउड, जिनको के नो हाउ है पॉलिटिक्स की, सोशल इश्यूज की चीज़ों, यू नो, पोएट्स थे, राइटर्स थे, डायरेक्टर्स थे, हु कम फ्रॉम अ वेरी पढ़े लिखे बैकग्राउंड से। तो उन लोगों का सीन ये था कि बाय द टाइम 70s एंडेड एंड द 80s स्टार्टेड एंड ज़ियाउल regime came in, अब वो at the end of the day they were artists, and artists are very sensitive people, very sensitive souls. तो जब सब एकदम से censorship लगना शुरू हो गई हर एक चीज के ऊपर, which people from the 80s would definitely agree with, तो उस टाइम पे जो एक प्राइम राइट आर्टिस्ट है, जो कि अपने प्राइम पे है इस वक्त, वो थोड़े से घबरा गए, वो अंदर वो इन्वर्ट होना शुरू हो गए। अब उनके जो असिस्टेंट थे, who were the next in line, who were supposed to work, उनके लिए रास्ते बंद होना शुरू हो गए, उनके लिए फिल्में बंद होना शुरू हो गई। They weren't able to express themselves, so they ended up not making films or ended up doing businesses या कोई और काम करना शुरू हो गए। Although they were trained, they were ट्रेनिंग चल रही थी उन लोग मास्टर्स के साथ, तो मास्टर्स बंद हो गए फिल्में बनाने में, उनकी फिल्में नहीं बन रही, उनके असिस्टेंट्स घर बैठ गए, बिकॉज उनको लगा कि यार आगे तो पोटेंशियल ही नहीं है इस चीज में। तो वो आर्ट कभी हार्ड टू पास ही नहीं हुआ टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो आपने एक जनरेशन किल की, फिर दूसरी जनरेशन ऑटोमेटिकली डेड हो गई। उस जनरेशन की गैप की वजह से थर्ड जनरेशन को पास ऑन ही नहीं हुआ वो क्राफ्ट। और अब हमारी जो फोर्थ जनरेशन है, वो उनको, हमें फोर्थ जनरेशन से मुराद है कि हम लोग हैं, हमें ये लगता है कि हमें फिल्म मेकिंग आती है, बिकॉज हमने बहुत ज्यादा बॉलीवुड फिल्में देख ली हैं और हमने बहुत ज्यादा हॉलीवुड की फिल्में देख ली हैं, और हमें सारी फिल्में हिफ्ज हैं और सारे स्क्रिप्ट्स हमें पता है, तो हम फिल्म बना सकते हैं। ऐसा नहीं होता। फिल्म मेकिंग इज अ टेक्निक, एंड यू, आई एम श्योर सेकंड मी ऑन दैट, कि इट्स कर्त विद्या, करने का काम है। यू हैव टू फिजिकली पेपर पे बनाना और विजुअलाइज करना एक और एस्पेक्ट है, उसको फिजिकली एग्जीक्यूट करना एक कंप्लीट डिफरेंट एस्पेक्ट है ऑल टुगेदर। So having said that, sorry, bringing it back. Sorry, I hope I'm not being too long. No, not at all. This is excellent. पता है. तो बेसिकली हुआ ये कि डांसर्स की जो अहमियत थी, वो दरमियान में कहीं गुम हो गई, वो दरमियान में खो गई। बिकॉज जब फिल्म खत्म हुई, उसके बाद जो प्रोड्यूसर्स वो वाले आए जिन्होंने कहा, ओए माजिया इधर आ, की कर रहे हैं तू? हाँ इधर आ, मैं फिल्म बनानी है। हाँ जी, केड़ी फिल्म बनानी यार? वो मेरे ते ना दसेगा तेन स्टोरी, उन्हें स्टोरी दसी, और जी गुजर साहब की स्टोरी है, तय करना, तो 2 गाने पाने ने दरमियान च है, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਚੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ कल्चर होएगा। उन्होंने कहा ठीक है जी, वो टी बॉय ने भी उठा के फिल्म बनाना शुरू कर दिया। अब कोरियोग्राफर जो आर्टिस्ट है, उसको बुलाया जाता है, उन्हें कहना, ओए मका गाने, चल छेती छेती छेती। हाँ, वो लड़कियों ने पैसे लगाना शुरू कर दिए फिल्मों पे। ये रियलिटीज हैं। हीरोइन जो उस टाइम की एक लॉट थी, उनमें बहुत अच्छी अच्छी स्टार्स भी थी, लेकिन उसमें से कुछ, बिकॉज ऑब्वियसली इंडस्ट्री जब चल रही थी उस टाइम पे हर तरह के लोग आ रहे थे उसके अंदर। तो कुछ लोग आए जिनको कि शायद काम का इतना अंदाजा नहीं था, लेकिन दे वर अवेलेबल एंड दे वर चीप। तो they kind of got to, they just sat on the bandwagon and went with it. तो उसकी वजह से क्वालिटी पे कभी काम ही नहीं हुआ। वो जो प्रोड्यूसर ने कहा उसकी डिमांड पे काम पूरा होता रहा। तो इस सारी चीजों को मिशमैश करते हुए अब हम जैसे ना तितर ना बटेर टाइप लोग जो हैं इंडस्ट्री में आते हैं,
और बाहर से मैं अपनी एग्जांपल दूंगा, मैं पढ़ के आया और मुझे ये लगता था कि मुझे सब आता है, मैं तो आके ये छा जाऊंगा, ये कर जाऊंगा, वो कर जाऊंगा। लेकिन मेरी अपनी औकात ऐसी थी कि मैं तो एक वेस्टर्न डांसर था, और मेरा जो स्टाइल ऑफ मूवमेंट था वो यहाँ पे लोगों को डिफरेंट तो लगा, लेकिन समझ नहीं आई शुरू शुरू में। तो मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया। आई वेंट टू उस्ताद्स, मैंने अपनी रिसर्च की, आई वेंट टू, जहां मुझे नॉलेज मिला मैं वहां पहुंच गया, जहां मुझे उस्ताद मिला मैं उसके कदमों में बैठ गया कि सर मुझे कुछ सिखा दें, करा दें। तो करते 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 आई स्टार्टेड रिफाइनिंग माय आर्ट। सो अब जाके आई थिंक आई एम इन दैट पोजीशन वेयर आई कैन ओपनली speak in an interview like yourself. Otherwise, majority of the time, the interviews are all about कि आप अपनी स्टोरी अपनी बता दें, आप कहाँ पैदा हुए, कितने बड़े हुए, कैसे हुआ, and the interview ends by the time I tell them about myself. नहीं नहीं, दिस इज दिस इज योर Please, दिस yeah. इज दिस इज दिस इज दिस इज योर फोर्टे, सो यू हैव टू स्पीक। बट लेकिन अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि मैं उस्तादों के पास गया, मैं टीचर्स के बाद क्या सीखने। ये मैंने नहीं देखा है हमारे इंडस्ट्री लोगों के पास कि एक दूसरे के पास जाके कुछ हेल्प मांग लें या कभी सीख लें, बिकॉज यू राइट दैट वी आर स्टक इन दैट रट ऑफ नॉट लर्निंग एंड इवॉल्विंग। अच्छा, अभी फिल्म इंडस्ट्री जो हमारी है, अल्लाह भला करे, पता नहीं वापस आएगी नहीं आएगी विद व्हाटएवर इज हैपनिंग। Yeah. लोग बहुत कहते हैं कि यार हम बॉलीवुड से काफी इंस्पायर्ड हैं, बॉलीवुड के ठुमके मारे होते हैं, बॉलीवुड से चल रहे होते हैं। क्या आपको भी यही कहा जाता है फ्रॉम द डायरेक्टर्स कि यार यही चाहिए बस छाप दो? क्या हमारी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है व्हेन इट कम्स टू डांसिंग एंड कोरियोग्राफी? कहा तो यही जाता है, रेफरेंस पॉइंट तो वही दिया जाता है, द क्लोजेस्ट रेफरेंस पॉइंट इज बॉलीवुड फॉर अस। ठीक है, हम बिकॉज कोई भी गाना जब बनता है तो एक 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 मुझे भी इवन टू टेक इंस्पिरेशन आई वॉच ठीक है, बॉलीवुड के गाने, देयर इज नो लाइंग इन दैट, बट साइमल्टेनियसली आई वॉच माय लॉलीवुड के गाने भी मैं देखता हूँ, पुराने पुराने सही, नए, अच्छे बुरे एक और टॉपिक है। तो मैं ठीक है, दोनों तरफ की जो चीजें हैं वो अंडरस्टैंड करता हूँ, और मुझे दिया भी जाता है कि जी मुझे हमें इस तरह की कुछ लुक एंड फील चाहिए। अब वो डिपेंड करता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे, वो कितने ओपन हैं या कितने क्लोज हैं, ठीक है, वो फिर उसके लिहाज से हम एग्जीक्यूट करते हैं। कुछ डायरेक्टर्स जो हैं वो जरा ओपन होते हैं, वो कहते हैं कि जी आपको जो करना है आप पे डिपेंडेंट है। कुछ डायरेक्टर्स जो है वो जरा उनकी एक सर्टन रिक्वायरमेंट होती है एंड दे वांट इट इन इन दैट, उसी तरह ठीक ही है, उनको ठीक चाहिए। है, तो मैं फिर क्योंकि मैं सिर्फ डांस डांस से मुराद है कि द फिजिकल डांस के अलावा मैं एडिटिंग भी करता हूँ, आई ऑपरेट कैमरा, आई डायरेक्ट माय ओन सॉन्ग्स। राइट, सो बेसिकली फ्रॉम द टाइम दैट द सॉन्ग इज गिवन टू मी, फ्रॉम स्टोरी बोर्डिंग से लेके टू ठीक है, कॉस्ट्यूम से लेके इसकी कंस्ट्रक्शन से लेके, आई एम इन्वॉल्व इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, एंड बिकॉज आई लाइक इट, आई एंजॉय इट, आई मैं अपने काम को पूछता हूँ, मुझे मजा आता है, तो मैं उसमें बहुत डिटेल में घुस जाता हूँ। तो उस डिटेल में जब मैं घुसता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज्यादातर जो है, यस ऑफ कोर्स इट हैज टू बी कमर्शियल, और कमर्शियल का मतलब है कि ऐसी चीज बनाए लोगों के लिए जो कि उनकी अकल को चैलेंज ना करे, उनको एंटरटेन करे। तो उसके लिए एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि रेफरेंस पॉइंट बॉलीवुड होता है, उसके अंदर फिर आई ट्राई एंड ब्रिंग इन माय ओन फ्लेवर। वो लोकल फ्लेवर है, वो मेरा कुछ अपनी इंस्पिरेशन है, कुछ जो मैंने चीजें मार्केट में देखी होती हैं या इस एनवायरनमेंट में रह के देखा हुआ है, मैं उसको लेकर आता हूँ ऑन बोर्ड, और कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ चैलेंज करूं अपने आर्टिस्ट को भी जो मेरे परफॉर्म कर रहा है, गिवन इन देयर कंफर्ट जोन और सर्कमस्टांसेस में रह के, मैं वो करने की कोशिश करता हूँ, और ओरिजिनल होने की कोशिश करता हूँ। किस हद तक हो पाता हूँ ये तो खैर लोग ही बता सकते हैं, बट या। नहीं, fair enough, I'm sure. अच्छा, are you a strict director, producer, choreographer when it comes to being a thing, yeah, or do you let unprofessionalism make its way on sets? I think I'm the most lenient अच्छा, person out of it. मैं strict in the sense कि मैं कुड़ता जरूर हूँ अपने अपने आप के लिए, अपनी जात को मैं बहुत ज्यादा निगेट करता हूँ। I don't verbalize too much. I don't really go like that. But मैं ढीठ हूँ थोड़ा सा, लोगों को पता नहीं है ज्यादा कि मैं अपने तरीके का काम करवा लेता हूँ। और दूसरा ये कि जब मुझे गुस्सा आता है किसी भी चीज पे, तो मैं दूसरे पे निकालने की बजाय आई चैनल दैट एनर्जी इनटू माय सेल्फ। आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड शूटिंग इन द बिगिनिंग,
तो लोगों को एडिटर्स को एडिट करना नहीं आते थे गाने। शूट करना मुझे भी थोड़ा लेट ही आया, मैं भी कोई सीख के नहीं आया हुआ था शूट। मैंने भी दूसरों के एक्सपेंस पे ही शूट किया है फिल्मों के गाने और सीखा है। बट मैंने बहुत रिसर्च की है, मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं एटलीस्ट बेहतर तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर सकूं। मैंने इन्वेस्ट किया इन इक्विपमेंट्स में और खुद से कैमरा उठाया और एडिटिंग की। मैंने एडिटिंग यूनिट लगवाया अपना। तो इस सारे सिनारियों में जब आप घुसते हैं ना, तो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। ठीक है। और उसमें मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपना काम जो है वो करवा लूँ उनसे। अब वो फिर 19-20 तो चलता ही है ऊपर नीचे। सो आई एम So there's no conflict at all happening when it comes to what you've experienced in the Pakistan entertainment industry at all. बिल्कुल नहीं है. well, there has been and there hasn't been both. Both. Fair enough. There has been and there hasn't been, and there still always is. It's such creativity is such a subjective field कि एक ही बात को आप कहेंगे तो आपका नजरिया कुछ और होगा, मैं कहूंगा मेरा नजरिया कुछ और होगा, but the common ground is where we all come together and agree on something to execute. तो उसका जो बेहतरीन हल है वो ये है कि मैं अपनी प्री प्रोडक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग करता हूँ गानों की, कोशिश करता हूँ वक्त के साथ साथ कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग कर लूं कि कोई एरिया रह ना जाए। फिर ऑन द स्पॉट व्हेन आई गो देयर किसी के पास मार्जिन नहीं होता मुझे वो करने के लिए, मुझे थोड़ा सा डाउट करने के लिए। ठीक है। Because people like to see people who are organized, and I try to be very organized. Fair enough. You expressed a little bit of discomfort when it comes to broadcasters making films and meddling with that. Is that a genuine concern for you if you're a producer director? ऐसा नहीं होना चाहिए. It's an absolute genuine concern. I don't mind broadcasters making films. They're supposed to make films because they're part of the entertainment and the whole industry. idea about the production houses as well कि जो आपने बात की थी, I mean, why is it yeah बताएं. they absolutely production houses का तो मुझे कोई वो इतना नहीं है कि they both should make films, but the thing is see creative arts and creative fields में and commercial fields में भी एक जो पहली तरजीह है ना वो है आपके लोग, आप लोगों को कितना एंटरटेन कर रहे हैं। लोग का मतलब है अवाम। आप उनको किस तरह से एंटरटेन कर रहे हैं, कितना एंटरटेन कर रहे हैं, एंड कितना रेडली अवेलेबल है आपका डेटा फॉर पीपल टू एक्सेस। कितनी दफा उनके कानों तक वो चीज पहुंच रही है, उनकी आंखों तक वो चीज पहुंच रही है। अब सोशल मीडिया का जमाना है, आप एक चीज करेंगे, इतने ज्यादा लोग काम कर रहे हैं टेलीविजन पे, 70-80 चैनल्स हैं, उनमें से 60-70-80% तो न्यूज ही है, बाकी जो 20% रह जाता है वो ड्रामे है। उन ड्रामों में हर एक्टर आ रहा है, लेकिन मैं देखता हूँ, मुझे पता ही नहीं कौन एक्टर क्या कर रहा है। एनीवेज, द थिंग इज कि जब एक चैनल एक फिल्म बनाता है या प्रोड्यूस करता है तो वो उसकी ओनरशिप ऐसे ले लेता है कि जैसे, और वो उसको इतना बड़ा बना देता है कि जी सुपरस्टार फिल्म और ये फिल्म और इतना पैसा हमने बना लिया और ये कर लिया और वो कर लिया और रिकॉर्ड तोड़, मगर रियलिटी में वो हो नहीं रहा होता। और दूसरी तरफ जब हम उन गानों को परफॉर्म करने के लिए किसी चैनल के लिए या किसी मल्टीनेशनल के लिए उनके पास जाते हैं तो वो पूछते हैं कि अच्छा जी ये तो एक्स की फिल्म है, तो इसको तो हम ले ही नहीं सकते बिकॉज हम वाई हैं। तो एक्स और वाई तो आपस में मिक्स ही नहीं हो सकते ना, वो तो आउट ऑफ द क्वेश्चन बात हो गई। ओके जी, अब ये भी तो आप, so when are we going to celebrate the films? When are we going to use that content to make better make better things? Me as a choreographer, मैंने जो चीजें कोरियोग्राफ की हुई हैं, अगर मैं अपने चैनल के ऊपर वो लगाता हूँ तो मेरे ही जानने वाले जो दोस्त हैं या जो लोग हैं जिनके लिए मैंने काम किया हुआ है, और उस वक्त वो they're begging me कि हमारे लिए इतने में काम कर दो, इतने में काम कर लो, और मैंने गाना लगाया है, they send me a strike. कि तुमने क्यों गाना लगा दिया। तो it's hypocrisy. We have to get out of this hypocrisy से निकलना चाहिए हमें। मुझे बस ये फ्रस्ट्रेशन है कि फिल्म है, उसको छोड़ दो, सब मिलके उसको प्रमोट करो यार। Fair enough. अच्छा, a couple of more questions. In religious fundamentalism, Pakistan में, it's part of a thing now, and many people consider dance as
टैबू और पसंद नहीं करते, कभी आपके तरफ इस तरह की हिचक क्लिच आए कि यार ये गलत है या हराम है? Honestly speaking, not too much. Okay. Here and there. एक दफा हुआ था इस तरह, मैं लाहौर में परफॉर्म कर रहा था एंड एक हजरत मेरे पास आए, तो उन्होंने मुझे आके कहा कि जो आप करते हैं डांस, आपको पता है कि पहले तो उन्होंने मुझे बहुत तारीफ की कि आप बहुत अच्छा, ये वो फ्लांडिंग बड़ा अच्छा आपका आपका स्टाइल, और आई इट वाज पार्ट ऑफ माय सूफी शो पे। बड़ा उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, बड़ा प्यार किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन पता है तुम्हें ये हराम है। तो मैंने, अब मुझे नहीं पता उस वक्त मैंने उनको कैसे टैकल किया, लेकिन ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस मी कि ये चीज जो है, ये तुम कर रहे हो, ये हमारे इस्लाम में या रिलीजन में नहीं है। तो मैंने कहा बट दिस इज ऑल आई डू, दैट्स, मेरी थॉट ही ऐसे काम करती है, मैं और कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे कुछ आता ही नहीं है, और अब मैं क्या करूं? तो but majority of the time, no, I have never really faced it, and I think the reason for that is because number one, people do get a little intimidated जब जब आपके पास knowledge होता है ना, to defend or to talk about what you're doing, not to defend but to enhance the beauty of what you're doing and have a conversation with people. तो they generally are, people are a little hesitant कि वो आपसे थोड़ी देर कॉन्वर्सेशन करने के बाद वो आपको नहीं कुछ कहते, पहली बात। दूसरी बात ये, बिकॉज मेरी फैमिली की तरफ से मुझे कभी इस तरह की ग्लिचेस नहीं आए, तो हेंस मेरी जो थिंकिंग है, जो मेरी जो सोच है, जो अप्रोच है टुवर्ड्स आर्ट्स, वो बहुत प्योर है, और मुझे प्योर ही लगता है, मुझे ये इबादत ही लगती है। ये इबादत है, तो ये सच बोलती है मेरे अंदर से, जो भी इसको परफॉर्म करता है उसके अंदर से ही निकलती है ये। But yeah, never actually faced a huge backlash as such. I've been very fortunate, alhamdulillah. या आई मीन फेयर इनफ, बिकॉज़ अभी मैं उसे देख रहा था कि नैब शयाद का टीवीसी चला था और वो बैन हो गया कि जी। पता नहीं, तो ये मीन जस्ट पीपल, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, बट वी हैव सम सेंसरशिप पॉलिसीज एंड आई होप इट गेट्स Right. In that context, Yes. in that context, I would like to add something in Yes, that please. context. Anything done, anything done tastefully, will people will not object to. Um, I personally feel that there has been, इससे पहले भी बहुत डांस बेस्ड बहुत सी चीजें हो चुकी हैं, और जो कि हम रोजाना बेसिस पे, डेली बेसिस पे देखते भी हैं, जिसमें कि मैं खुद एक डांसर हूँ, और मैंने ऐसे ऐसे कलाम पे परफॉर्म किया हुआ है, सूफी कलाम पे बहुत परफॉर्म किया हुआ है मैंने, and as I said, I've not really faced any backlashes as such. There are other people. There's Nigar Chaudhary who's done performances. Nahid Siddiqui has done a lot of performances, and there are female bodies, that performing on Indu ji has performed, Karima ji has performed. Everyone has performed. It's how, and even in commercial sense, maybe बहुत लोगों ने perform किया हुआ है. It's the entire presentation. I find somewhere in the middle, trying to bring in that Moulin Rouge culture. Okay. Got lost with our cultural, it clashed with a very different dynamic के साथ clash हुआ, हालांकि सब कुछ okay थी, it's just, I don't know, something just wasn't right, and that's, I think that triggered that reaction, Fair enough. perhaps maybe making those movements, because there is a certain sensibility that one needs to take into account when you're working on pronouncing a national, क्या उसे कहते हैं, national, चाहे बिस्किट ही है जो भी है, बट एक नेशनल बात कर रहे हैं, आप सारे सूबों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप सब कुछ इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसको जब आप कोरियोग्राफ करेंगे, उसको कंसीव करेंगे, उसको एडिट करेंगे, उसको डायरेक्ट करेंगे, तो एक सर्टन तरीके से उसकी चीज होगी, तो वो टेस्टफुली अच्छा लगेगा. I don't know if that makes any sense. No, of course. But there is like it's a very non-tangible एक एरिया है आर्ट्स में. Fair enough. Acha, is dance and choreography a lucrative field? I mean, if someone wants to get up tomorrow and become a choreographer and dance, is it payment wise? Is it worth it? Are you getting paid on time? Do you have any hitches? Are you able to pay all the bills on time as well for the studio or not?
Oh my God. Fantastic. What a topic. Let's go on about it all night long. Right. So, well, mix of both. I've worked with some amazing producers. Like I always have massive respect for, someone like Wajahat Rauf. I think a he's a gem. He respects an artist. He would always, and the reason I'm quoting is because he trusted me fully with all his songs, and I think he's Right. one producer director that I admire for the guts that he has of trusting a professional that when he brings them on, he trusts them fully. But there are other producers and directors who I've worked with. It hasn't been a pleasant experience, channels and producers both. And when you say okay, it's a lucrative field, it can be a lucrative field. The reason मैं survive कर रहा हूँ या किया हूँ is because I'm a performer as well. एंड मैंने अपना एक डांस स्टाइल मुतारिफ करवाया है. मैंने एक कंटेम्प्रेरी फ्यूजन सूफी स्टाइल को ठीक है. बनाया, उसको उसको नर्चर किया, उसमें परफॉर्मेंसेस क्रिएट की. तो जब मैं वो परफॉर्मेंसेस करता हूँ, सो दैट गिव्स मी सम रेवेन्यू एंड दैट काइंड ऑफ गेट्स मी गोइंग. अगर मैं सोली कोरियोग्राफी पे डिपेंड करूँ तो मैं भूखा मरूंगा, बिकॉज कोरियोग्राफी में बहुत कम पैसे देते हैं. पाकिस्तान के कोरियोग्राफर्स को बहुत कम देते हैं. अगर बाहर से कोरियोग्राफर को बुलाया जाए तो उनको असिस्टेंट्स भी मिलते हैं, उनको बेहतर पैसे भी मिलते हैं, उनको वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, टाइम एडवांसेस एक्स वाई जी. बट पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी कोरियोग्राफर्स के साथ 19-20 वाला फर्क करते हैं कि अच्छा, आप 19 हो तो आप 1000 ले लो, आप 20 हो तो आप ऐसे करो, आप ना 1001 रुपया ले लो. और अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, हमारे पास 17-18 के भी ऑप्शन है. So it's not about who's doing what, it's about who's available and who comes in for cheaper. और इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट हमारा ही है, हम लोगों का ही है, हम कोरियोग्राफर्स का, हम प्रोफेशनल्स का ही है कि हम ही आपस में बहुत कम मिलते हैं, हम आपस में डिस्कशंस ही बहुत कम करते हैं. अगर मुझे एक चीज़ ऑफर हो रही है और एक मार्केट में एक चीज़ चल रही है, एक रेट चल रहा है, स्टैंडर्डाइज नहीं है रेट सारा. कि अगर मुझे एक चीज़ ऑफर हो रही है 1 लाख रुपए में, और मैं कह रहा हूँ नहीं, मुझे 5 लाख रुपए चार्ज करने हैं, तो वो कहेंगे नहीं, यही चीज़ तो हमें 50,000 रुपये में मिल रही है. तो वो I'm saying there's no standard as such. क्वालिटी काफी इफेक्ट हो जाती है, आई थिंक, ऑन बजट कंस्ट्रेंट्स. क्वालिटी इफेक्ट होती है, बिल्कुल क्वालिटी बहुत इफेक्ट होती है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि शायद क्वालिटी का मतलब है कि हमने एक 2.5 मिलियन फॉलोअर्स वाली स्टार डाल ली है, और क्या उसे कहते हैं, हमने एरी एलेक्सा कैमरा यूज कर लिया है, और हमने एक बहुत बड़ा सेट लगा लिया है, तो हमें वो मिल जाएगा. वो दे डोंट अंडरस्टैंड कि देयर इज एन एस्थेटिक टू इट, there is a thought process behind it. I'm a director as well, and जब मैं डायरेक्ट करता हूँ चीजों को, तो मुझे अंदाजा है कि मुझे उस चीज की डायरेक्शन में क्या इन्हांस करना है, किस तरह से खूबसूरती को लेकर आना है, किस तरह से उसके कॉर्नर्स कट करने हैं. and when I'm shooting, and because I edit as well, तो मेरी एडिटिंग चल रही होती है साथ साथ कि मुझे कितना पोर्शन चाहिए, मेरे प्रोड्यूसर को भी नुकसान ना हो, टाइम भी बचे, आर्टिस्ट भी ना थके. अब एक नए बच्चे को अगर आप लेकर आते हैं तो वो तो शुरू से गाना लगाएगा, एंड तक गाएगा, नाचो नाचो, कैमरा जिप पे लगाओ, जिप पे गया कैमरा, ट्रैक पे लगाओ, ट्रैक पे कैमरा गया, अब जी इसका करो, गाने को जोड़ दो. वाह, मैंने भी किया हुआ है बाय द वे शुरू के दिनों में. नहीं, एब्सोल्युटली you're right about के ऐसा ही होता है. अच्छा, आपसे मैंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, ऑब्वियसली हमारा टाइम होता ही है, बिकॉज इट्स आई होप आई वाज एबल टू एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस, बट इन टुवर्ड्स राउंडिंग इट अप, आई वुड लाइक टू आस्क यू three things I will ask you dislike about this entertainment industry combined, and how would you change them if given a chance? Pardon me, so I dislike about three things that you dislike about the entertainment medium, and how would you change them from the dance and choreography aspect? Okay. Three things that I dislike. First one being no value for time. And time is money.
हर तरह पे. Secondly, lack of training. Thirdly, I think एक representation. So first thing that I mentioned, time. आप बाहर रहे हैं, मैं भी बाहर रहा हूँ. Time is money. Time can never be bought again. Absolutely. अगर आप टाइम पे उठेंगे नहीं, टाइम पे काम नहीं करेंगे, टाइम पे पहुंचेंगे नहीं, टाइम पे डिलीवर नहीं करेंगे, तो यू विल नॉट बी सक्सेसफुल इन एनी एस्पेक्ट. दूसरा, टाइम विद इन डांस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि टाइम पे मूव करना, टाइम पे मूवमेंट का हिसाब करना, कि जिस टाइम पे जितनी मूवमेंट रहेगी उतनी टाइम देना. सेकेंडली, ट्रेनिंग जहां तक आ जाती है, मैं इसको इस तरह करना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा लोग, आप जितने भी बड़े मर्जी स्टार हो जाएं, आप जब तक ट्रेनिंग नहीं लेंगे, आप तब तक अच्छे डांसर परफॉर्मर नहीं बन सकते. ये गारंटी बात है, मेरे पे स्टैम्प पेपर पे लिखवा लें. आपके 5 लाख, 10 लाख, 50 करोड़ फॉलोअर्स हो जाएंगे, अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे, यू विल स्टिल बी अ बैड डांसर. Third and the most important was I forgot. What did I say? You can take How your time. important is it that I forgot? Very important. Fair enough. मेरी कोई नहीं है. So there was time, there was training, and third one जो मैंने कहा था वो बड़ा important है. Fair enough, fair enough, fair enough. मतलब बिल्कुल ठीक है. सारी चीजें important थी. सारी चीजें important थी. Very good dear friend of mine, Hassan Rizvi. I've seen him my entire life. Oh, I love him. Dancing, He's my choreographing, and blah blah. And I always keep telling him that Hassan, I saw you, being so passionate about it. Or abhi to obviously he's busy in 10,000 other things, which makes it feel, I think choreographers and dancers should get together and I think create a union, association. बड़ा फर्क पड़ता है, and I leave that to you. I leave that to you. It's your thing. And on that note, I forgot to ask you one question. मुझे याद आया अभी. Television industry. मैं television industry में देख रहा हूँ आजकल थोड़ी dances हो रही है, लेकिन पता नहीं up to mark नहीं है, पता नहीं क्या नहीं है. वहाँ पे आपका कुछ feedback है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, वो थोड़े कभी ऐसा. Have you seen the dances? Up to mark. जी, जो पिछला सवाल हुआ था ना, टाइमिंग, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनलिज्म, ये तीनों, हर एस्पेक्ट जो है, जब तक ये बेसिक फंडामेंटल्स मीट नहीं होंगे, तब तक आपके कोई भी बंदा नहीं परफॉर्म कर सकेगा. बिकॉज हमें 2 दिन मिलते हैं कोरियोग्राफी करने में, एंड एक ऐसा बंदा हमारे सामने आके खड़ा कर दे जो कोई पत्थर है, लकड़ है, हम उसको बेटा 1 2 नो बेटा 1 नो बेटा 2, तो 2 दिन में आप क्या बेटा को सिखाएंगे? जब बेटा सीख के आएगा तो वो आगे नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्म कर सकेगा. Fair enough. सही है, ठीक है. On that note, Wahab, thank you so much. I am grateful that you took our time, and I think you're the only one who's on the Take Two edition who's going to be talking about dance, choreography, and passionate field. So I'm thankful. Please take care of yourself. Inshallah, आपसे मुलाकात जल्द होगी. I have amazing ideas. I really want to work with you as well. I am a music producer as well, so maybe we can someday work together as well. ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा. Regards to everyone. Thank you so much. Khuda Hafiz. Thank you everyone. Khuda Hafiz.